Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of newspaper analysis. Today in the Indian Express newspaper there are various news items, but the news which are important for your prelims, your mains examination, that is your UPSC examination, that news we will cover here. So let us move to the news items which are there on this Indian Express newspaper. So if you come to the page first, so first of all today we are celebrating our 25 years of this Kargil Vijay Divas. So Kargil war has happened on 26th of July 1999. So let us know about some news, or you can say some information about this Kargil war. So it is on page first only it is given about Kargil war, that 25 years we are now celebrating this Kargil war. So here we are remembering the bravery of our heroes who has laid their lives for our country, and we have won this Kargil war. This Kargil war was fought between India and Pakistan. So it was happened in on which date 1999. So we are this 25 years has been passed of this Kargil war. So so here, if you see about the Kargil war, then it is saying that after the Indo-Pak war, you know that the Indo-Pakistan war has happened. First, it has begun in 1947, then 1962, then 1971, then after that, that last it was happened in 1991 in form of Kargil war. So if you see the Indo-Pakistan war here. So Indo-Pak war of 1971. After that, there had been many military conflicts, but both the countries conducted nuclear tests in 1998. You know that our Pokhran test, that nuclear test, India has also conducted on that year also. That Pakistan has also conducted, but which has further escalated tensions, and finally the Kargil war happened in 1999. So Kargil war, also known as Kargil conflict, fought between May-July of 1999 in the Kargil. Where is the Kargil place? That is in district in UT of Ladakh. Earlier it was that part of Jammu and Kashmir. Now both are union territory, separate union territory. So district of Jammu and Kashmir, where it has happened all along the line of control. You know that this the line which is dividing the Pakistan and Indian territory. So line of control. So here Kargil war, which India has won, so it is also known as Operation Vijay. So that India has conducted that Operation Vijay. So in the year 1999, India and Pakistan signed the Lahore Agreement to mutually resolve the Kashmir issue in peaceful manner. But it has not done in that way. So here after that, however, the Pakistan troops began infiltrating toward the Indian side of the line of control. So infiltration in that infiltration started from this Pakistan side to Indian side. So line of control under the Operation Badr, that was the Pakistan, the Operation Badr, hoping to cut off the Indian troops in Siachen. But what happened? The Indian Army responded by launching Operation Vijay. So it was the operation of Indian Army, Operation Vijay. So you have to remember about this Operation Vijay. It happened in Kargil war in 1999. So on 3rd May 1999, Pakistan has started this war when it has infiltrated into the high altitudes in the Rocky Mountains region of Kargil with around 5,000 soldiers and captured it. So when the Indian government got the information about it, Operation Vijay was launched by the Indian Army to throw back the intruders who has treacherously occupied Indian territory. हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऑपरेशन विजय जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इंडियन आर्मी ने शुरू किया था, तो हम लोगों ने विजय प्राप्त किया आपको पाकिस्तान पर, जो ये ऑपरेशन विजय हुआ था जिसमें, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। इसलिए इस डे को डेडिकेट किया जाता है जो मार्टियर, जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं देश के लिए, तो उनके मतलब याद में इससे मतलब हम कारगिल वार को याद रखते हैं। 25 ईयर्स मतलब 25 साल कारगिल वार का, अभी तक हम लोग 25वां साल मना रहे हैं। तो व्हाट डू वी नो अबाउट द कारगिल? वी हैव सीन हियर, so it is the Kargil war Vijay Divas today. So this was on that first page. Now coming to this next page, if you see that on Indian Express this here, then you know that today the ceremony of that opening ceremony is there in Paris for that Olympics, which are now going to held in Paris only. So this opening ceremony is there. So you remember today Google has also changed the doodle about the ceremony, opening ceremony of this Olympics. So India's
team has also participated. India's that citizens, the athletes from India has also participated in this in such that Olympics games. So it is talking about Olympics. Now coming to the next page, if you see on the next page, so here nothing important much on the first page. Now coming to the this where I was saying that coming to this now, तो हम लोग अब सेकेंड पेज पर आते हैं. तो हेयर एक और न्यूज़ था आपको, मतलब जो ओलंपिक्स के दौरान जो ओलंपिक्स जो अभी मतलब कंडक्ट आपको मतलब पेरिस में हो रहा है, तो उसमें क्या था, देयर वाज अ रिवर यू नो द रिवर सीन. एक रिवर है जो कि फ्रांस में एक रिवर है, तो वो रिवर न्यूज़ में है. तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो प्रीलिम्स का पीटी का क्वेश्चंस आपको यहाँ से मतलब पूछा जा सकता है कि वेयर रिवर सीन इज लोकेटेड, इन विच कंट्री इट इज लोकेटेड, व्हाट आर द एरियाज अराउंड दिस रिवर, हाउ वेयर इट इज फ्लोज. सो ये सब जो क्वेश्चन आपको ये यहाँ से पूछा, इसलिए हमने मतलब जो मैप वर्क है आपको जो रिवर सीन उसका हमने यहाँ पर आपको मतलब जो फोटो जो पिक्टोरियल है वो हमने यहाँ पर मैप लिया है. तो अगर आप यहाँ पर मैप देखें तो जो रिवर सीन है आपको, रिवर सेन वो कहाँ आपको फ्लो करता है, इट इज इन फ्रांस. ये फ्रांस में आपको लोकेटेड है, ये देख सकते हैं फ्रांस कंट्री है, वो यूरोपियन कंट्री है, उसमें ये लोकेटेड है. तो रिवर सीन की अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर सीन, तो रिवर सीन व्हाट इट इज, द सीन इज ए 77 kilometer. So it is the longest kind of a river. So 777 kilometer long river in the northern France. नॉर्दर्न फ्रांस में ये 777 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है. इट्स ड्रेनेज बेसिन इज इन द पेरिस बेसिन कवरिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न फ्रांस. पूरा नॉर्दर्न फ्रांस को यह कवर करती है. इट राइजेज एट सोर्सेज सीन, ये सीन सोर्स से राइज करती है 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ डिजोन नॉर्थ फ्रांस इन द लैंग्रेज प्लेट्यू फ्लोइंग थ्रू पेरिस एंड इनटू द इंग्लिश चैनल. तो क्या करती है फाइनली, यह फ्लो करती है आपको इंग्लिश चैनल में. इंग्लिश चैनल आप लोग जानते हैं. तो अगर ब्रिजेस की बात करें तो ये सब ब्रिजेस ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये सोर्स आप जानते हैं, सीन है, सीन रिवर से सोर्स है, लेंथ इसको आप ध्यान रख सकते हैं. माउथ क्या है, इंग्लिश चैनल में जाकर आपको फ्लो करती है. रिवर सिस्टम सीन बेसिन है. अगर इस रिवर की और मतलब अगर पिक्चर जो मैप पर अगर देखें तो ये आपको जो सीन रिवर है, दिस सीन रिवर यू आर सीइंग हियर, सो इट्स flowing from here and it's going to like this, and it's that its mouth is opening in the English channel. This you can see the river, how this Paris are this France, this country is located in the European in European country it is that France country, and which country is bordering, you can see here the Germany is also there, Belgium is there, United Kingdom is there, here English channel is there. So you can see from this map work. So Bay of Biscay is also here. So this you can remember, these questions can be asked. So if any places are coming in the news frequently in the that current affair, then that is important for your PT exams. From that current affairs only that news, that places in news are coming in your एग्जाम. तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इटली भी मतलब इसके जो बॉर्डरिंग जो कंट्री है वो इटली भी आपको. तो ये आपको मतलब जो सी नदी के बारे में था. Now coming to the next page, on next page, which page it is? It is second page. Here also nothing important. That extension of that first page it is given. Now coming to this. This is also that add page. On fourth page, if you will see, here also nothing important. On fifth page also, here also nothing important. Sixth page if you come, then sixth page also I think yes, here also nothing is important on sixth page. Now if you come to the seventh page, yes, here some news that articles are important. If you come to this here, then it is here it is said that no pollution control permits for white category sectors now. So this white category industry, white category, what is this white category? This can be asked in your PT exam. So I have taken this news. So if you come to this white category, so let us zoom so we can see it very clearly. So if you see the white category industry, so if you see this white category industry, let us white category industry, yes.
So if you see this white category industry, so what is this white category industry? तो यहाँ गवर्नमेंट ने आपको मतलब जो ये इंडस्ट्री है जिसे व्हाइट कैटेगरी बोला जा रहा है, जो सेक्टर्स है आपको, ये किस किस सेक्टर को डिनोट करता है? जो व्हाइट कैटेगरी होगा वो नॉन पॉल्यूटिंग सेक्टर हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मतलब जो नया आपको जो पॉलिसी बनाया, वो रूल बनाया, उसमें मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि मतलब जो व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री है वो नॉन पॉल्यूटिंग आपको क्या है, इंडस्ट्री है। और वो इसको मतलब किसी तरह का कोई मतलब जो परमिट लेना पड़ता है, चाहे वो परमिट आपको कंसेंट टू स्टैब्लिश हो, कोई फैक्ट्री आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं व्हाइट कैटेगरी प्रोडक्ट्स के लिए, या कोई कोई कंसेंट आपको लेना है गवर्नमेंट से, वो कंसेंट आपको आप नहीं लेना। तो ये क्या, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई भी आपको कंसेंट या प्रायर परमिशन आपको नहीं लेना। वो किस एक्ट के अंडर आता था, जो मतलब कंसेंट लेना, एयर एक्ट 1981 एंड वाटर एक्ट 1974। ये आपको प्रीलिम से पूछा भी गया ये एक्ट के। ये एक्ट के तहत मतलब क्या होता है कि जो वाटर एक्ट 1974 है एंड द एयर एक्ट 1981, through this act the company has to seek the permissions from the government, that government which is responsible for maintaining these kinds of this polluting industry। तो यहाँ पर ये मतलब जो गवर्नमेंट ने आपको मतलब ये बोला है कि मतलब ये व्हाइट कैटेगरी जो इंडस्ट्री होगा, व्हाइट कैटेगरी किसी तरह का जो इंडस्ट्री होगा या इंटरप्राइजेस होगा, उसे आप किसी तरह का ये मतलब जो कंसेंट, जो फैक्ट्री लगाने के लिए या फैक्ट्री चलाने के लिए आपको कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा। व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री की बात करें तो कौन कौन सा इंडस्ट्री है? विंड एनर्जी हो गया, आपको सोलर एनर्जी हो गया, जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको एयर कूलर्स, जो बाइसिकल हो गया उसका जो प्रोजेक्ट आपको लगाना है, व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री उसे बुलाते हैं। इसे हम सिटी जो जो यहाँ पर देख सकते हैं, कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, इसका परमिट्स आपको नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं है परमिट्स लेने का। वो आपको सीपीसीबी के अंदर जो 2016 में क्या होता है, पहले आपको जो पॉल्यूशन इंडेक्स है, पॉल्यूशन इंडेक्स कोई भी इंडस्ट्री का डिटरमाइन होता है, उसी के अनुसार उसे परमिट दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो इसका पॉल्यूशन इंडेक्स है ये कम से कम 20 तक ही आता है। जो पॉल्यूशन इंडेक्स का पूरा अगर मेजरमेंट देखें तो वो 0 से 100 का पूरा मतलब एक मेजरमेंट है, लेकिन ये 20 तक ही आता है, इसलिए इसे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं कहा गया। इसलिए किसी तरह का कंसेंट आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर वाटर एक्ट की बात करें तो वाटर एक्ट 1974 क्या कहता है कि, और एयर एक्ट 1981, जो ये आपको जो कंसेंट है आपको एस्टेब्लिश करने के लिए, और ये क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको रिक्वायरमेंट होता है। मतलब किसी भी इंडस्ट्री को आप सेटअप करने के लिए, किसी जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए हो गया, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑपरेट करते हैं तो आपको मतलब परमिशन आपको ग्रांट चाहिए, परमिशन आपको लेना पड़ेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो क्लाइमेट चेंज था, ये 2 सेपरेट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाया, जिसके कारण आपको मतलब इसमें मतलब आपको व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री को किसी तरह का मतलब परमिशन नहीं लेना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री क्या होता है, और ये मतलब जो वाटर एक्ट 1974 एंड एयर एक्ट 1984, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज पर इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज था। नाउ इफ यू कम टू द नेक्स्ट पेज, then you see that this on page 8, here also one important news is there of nisar. Nisar, you know, it is of science tech news. If you come to this nisar news, let me zoom here. अगर निसार जो न्यूज मिशन की बात करेगा, निशान मिशन, ये किसका मिशन है? निसार का जो जो आपको पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टैंड फॉर नासा इसरो। नासा, ये निसार का जो पूरा फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका निसार जो नासा सिंथेटिक एपर्चर, ये नासा और इसरो दोनों का जो मतलब बोथ द मतलब जो स्पेस जो मतलब आपको जो एक यूएसए का आपको स्पेस इंडस्ट्री मतलब बोल सकते हैं स्पेस है, जैसे इसरो हो गया वो क्या इंडिया का है, नासा क्या है आपको यूएसए का। तो बोथ हैज डिजाइन टू मेक एक्सट्रीमली ग्रेनुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ एट रेगुलर इंटरवल्स। ये मतलब निसार क्या है, एक ऐसा सिंथेटिक एपर्चर है जिसे मतलब अगर सैटेलाइट के फॉर्म में इसे लगाया जाएगा, इससे क्या होगा कि आपको जो अर्थ का रेगुलर मतलब जो अर्थ का पूरा मैपिंग करना, किस किस चीज में वो मैपिंग आपको जरूरत है, जैसे कि कोई भी स्मॉल चेंज अगर सेंटीमीटर में भी हो रहा है तो उस चेंज को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। जो छोटा सा अगर किसी ट्रेन पर भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कहीं जोग्राफिकल एरिया में कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि कोई ग्लेशियर अगर मतलब पिघल रहा है, या किसी तरह का वेजिटेशन और फॉरेस्ट में कोई डिफॉरेस्टेशन को ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकता है, अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकता है, वोल्केनोस को कंट्रोल कर सकता है। तो ये आपको मतलब इसलिए इसे मतलब लगाया जाए। तो निसार आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि ये जो निसार है मिशन, ये इसरो और नासा बहुत मतलब ज्वाइंटली मिशन है आपको निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार।
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट ये पीटी के लिए। अगर आप यहाँ देखें तो जो इस बार बोला गया कि निसार का मतलब जो लिस्ट में नहीं है कि इस बार मतलब वो पुटअप किया जाएगा आपको सैटेलाइट के फॉर्म में। अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट अनमैन्ड सैटेलाइट जो फ्लाइट मतलब इस बार पर भेजा जाएगा आपको मतलब स्पेस में, वो गगनयान प्रोग्राम होगा। फिर एगो स्पेडेक्स प्रोग्राम है। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो आप स्पेस मिशन देख रहे हैं, गगनयान क्या होगा? स्पेस मिशन है। वहां जाके आपको मतलब स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेटअप करना, वहां से कुछ आप रिसर्च कर सकते हैं, स्पेस का स्टडी कर सकते हैं, या किसी भी मतलब जो आपको सेलेस्टियल बॉडी उसका स्टडी करना होता है। तो इसलिए क्या गया कि जो स्पेडेक्स आपको है मतलब जो ये डॉकिंग जो होता है, डॉकिंग एक प्रोसेस होता है। मतलब इसमें क्या किया था डॉकिंग में आपको, मतलब कि जो दो स्पेस क्राफ्ट है उसको एक मतलब दोनों एक्सट्रीमली हाई मतलब स्पीड से आपको रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है, तो दोनों क्या किया जाता है एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि एक स्पेस स्टेशन तैयार होता है। तो ये डॉकिंग एक प्रोसेस है स्पेस स्टेशन तैयार करने के लिए, आपको इतना ही ध्यान रखना। तो ये इसरो का कैपेबिलिटी और ज्वाइंट असेंबल पार्ट को क्या करता है मतलब जोड़ के एक स्पेस स्टेशन आपको तैयार करता है। तो ये आपको परमानेंट स्टेशन मतलब इंडिया का प्लान है कि जो 2030 तक हम वहां पर परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। एक और मिशन देखें अगर टीडीएस मिशन है, तो ये इसका मिशन होता है टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम डिजाइन बाय इंस्टीट्यूट फॉर, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर। तो ये भी इसरो ने कहा कि हम इसे लॉन्च करेंगे। तो बिसाइड दिस नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-2, ये भी एक नेविगेशन सैटेलाइट से जो आईएनएस कॉन्स्टेलेशन का एक सैटेलाइट है जो जीएसएलवी रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एसएसएलवी रॉकेट क्या होता है, जीएसएलवी रॉकेट। ये साइंस टेक का टॉपिक है जो मतलब यूपीएससी में जो साइंस टेक का टॉपिक उसमें आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज था जो मतलब जो आज न्यूज़पेपर में दिया गया था वो हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अगर इसके नेक्स्ट और न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो अगर नेक्स्ट न्यूज की यहाँ बात करें तो एक न्यूज मैंने आपको सेपरेटली कवर किया था। आई हैव सेपरेटली कवर दिस न्यूज अबाउट द अमीबा, द ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज। So if you see about this brain eating amoeba disease, then it is talking about that how this disease has occurred. So let us revise this disease. This news is coming very frequently, very oftenly. This news, if you see in the newspaper, so it is very important for your prelims. So on disease part also, if you see, then now recently, now you will see then UPSC are mainly asking from the disease which are in the news. So about his vaccines, how disease is occurring, what kind of that worms are responsible for that having this disease, like bacterial it is, or it is fungal, or it is viral. So if you see about this brain eating amoeba, then it is here it is talking about. Let us zoom here also. So if you see this brain eating amoeba, so it is also known as primary amoebic meningoencephalitis. So encephalitis, you know that it is a kind of brain fever. Matlab if brain is getting inflamed, so it is a kind of brain fever. So this primary amoeba meningoencephalitis is caused by which that floweri. This is a kind of algae. Its name is Nigeria floweri. This algae you have to remember. So it is an amoeba found in that soil and fresh water such as lakes, rivers, ponds, and as well as treated swimming pools. According to US Central Disease, so most people saying that dies within 1 to 18 days after symptom begins. It usually leads to coma and the death after 5 days. So these are the about this the brain eating amoeba. I have covered it very holistically in one of my lectures. You can that visit that lecture in my YouTube channel. So there I have taken this lecture, these topics very holistically. I have covered this. So this is about the brain eating amoeba. If you come to the next page, now come to this next page. So it is on this that editorial page. Nothing is important. It is talking about the history that Kamala Harris American history. So it's not important for your UPSC exam. Just for interest for that comprehension practice which are coming in the CSAT paper. That for that you can read these articles. So it can make your vocabulary strong, and you can your that chances of that solving that comprehension will increase. So this is not very important for your that reading habit. You can read this. So
Now coming to the next paper here, also nothing important. In economy part also nothing important news are there. World part also if you see, then yes, here also nothing important news items are there. If you come to the next page, on explain page, yes, here every explain page today, matlab what topics are given on this explain page, that is important for your exams. सो अगर ये पहला मतलब जो एक्सप्लेन पेज का जो पहला पार्ट देखे, जो पेरिस ओलंपिक्स विच आर नाउ बीइंग कंडक्टेड इन पेरिस, दैट इज फ्रांस. सो इट इज सेड दैट इट विल बी द मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली इन हिस्ट्री. सो ये क्लाइमेट फ्रेंडली बहुत ज्यादा होगा, पॉल्यूशन कम होगा. जो किस तरह ये क्लाइमेट फ्रेंडली हो वो हम लोग यहाँ मतलब एक्सप्लेन में देखेंगे कि क्या मतलब जो वहाँ का जो आपको गवर्नमेंट है वो मतलब उसने क्या कहा और क्या मतलब ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है या नहीं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे. सो यहाँ पर अगर ये पॉइंटेड फॉर्म में जो हमने यहाँ पर मतलब जो आपको शेड किया है वो पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट है आपको. तो अगर यहाँ पर बात करें अब मतलब आपको ओलंपिक्स की, तो बोला जा रहा है कि जो पेरिस का जो ये 2024 जो आपको ओलंपिक्स जो होगा, ये 2024 जो ओलंपिक्स अगर बात करें पेरिस का, तो ये पेरिस का जो 2024 ओलंपिक्स होगा, ये बोला जाता है कि ग्रीनेस्ट गेम्स इन द हिस्ट्री. इसको ग्रीनेस्ट गेम बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रीन गेम होगा. ग्रीन गेम का मतलब ग्रीनेस्ट गेम हो गया मतलब कि आपको जो पॉल्यूशन जो कार्बन इमिशन होता है वो सबसे ज्यादा कम होगा. अगर इफ यू सी द कार्बन इमिशन, तो इट इज सेइंग दैट रफली जो मतलब जो पहले का जो ओलंपिक्स होता 3.5 मिलियन टन आपको जो जितना भी ओलंपिक्स है, अगर वो टोक्यो में हो या किसी रायो में हो या लंदन में हो, तो उसका जो जो मिलियन टन्स जो आपको कार्बन इमिशन था वो कितना था, 3.5 मिलियन टन. अब बोला जाता है कि इस बार जो ओलंपिक होगा उसका जो कार्बन इमिशन होगा 1.7 टन. तो ये देख सकते हैं इसका सीधे हाफ हो गया. ये बोला जाता है इसलिए ग्रीनेस्ट आपको जो गेम होगा. तो किस सेंस में ग्रीनेस्ट होगा, कैसे मतलब हम लोग इसे ग्रीनेस्ट मतलब बनाएंगे, वो अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि पेरिस जो 2024 होगा वो मेजरली जो पावर जो किया जाएगा, जो मतलब अगर गेम कर रहे हैं तो वहाँ का जो आपको टूरिस्ट आ रहा है, बोला जा रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट होगा, आपको खिलाड़ी या 15,000 20,000 से ऊपर होगा. तो जितना भी आप वेन्यू क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है कि आपको जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट होगा रिन्यूएबल एनर्जी से. तो व्हाट रिन्यूएबल एनर्जी लाइक जियोथर्मल एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी. सो ये क्लाइमेट फ्रेंडली होगा, इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ का मतलब जो क्लाइमेट जो आपको कार्बन फुटप्रिंट होगा वो कम होगा आपको. अगर ईटिंग हैबिट की बात करें तो वहाँ पर जो ईटिंग जो इटलीज जो बनाया जाएगा वो आपको वो प्लांट बेस्ड मतलब जो फूड होगा उसको प्रमोट किया जाएगा, लोकल फूड को, सस्टेनेबल फूड को प्रमोट किया जाएगा. तो आप देख सकते हैं जो एफएओ का जो एक मतलब डाटा उसने बोला कि जो मीट और डेयरी इंडस्ट्री होता है उसका जो मतलब आपको इमिशन होता है 18% ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन होता है. मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, अगर मीट और अगर आप डेयरी कंज्यूम करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल है मतलब ग्रीन हाउस इमिशन करने का, ग्लोबल वार्मिंग का, वो 18% है. तो ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या प्रमोट किया जाएगा प्लांट बेस्ड फूड. अगर आईपीसीसी की रिपोर्ट की बात करें, जो असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी 6 असेसमेंट रिपोर्ट ने रिलीज किया था, उसमें भी आईपीसीसी ने कहा था कि जो मतलब आपको जो अगर मतलब हमें जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना है, या यहाँ पर अगर रिवर्स तो नहीं कर सकते लेकिन अगर कंट्रोल करना है या यहीं पर आपको 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना, तो हमें प्लांट बेस्ड फूड की तरफ मूव करना पड़ेगा. सो मीट और डेयरी इंडस्ट्री को यहाँ प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो प्लांट बेस्ड फूड या लोकल सस्टेनेबल फूड से यहाँ प्रमोट किया जाएगा. अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें तो वो आपको जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, जो फूड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बाद में क्या किया, ओलंपिक्स गेम खत्म होने के बाद उसको रीयूज किया जाएगा. अगर सेकंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट से भी जानते हैं वेहिकुलर इमिशंस आर आल्सो वेरी मच रिस्पांसिबल फॉर योर ग्रीन हाउस गैस दैट इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन. तो अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जितना भी ओलंपिक वेन्यूज होगा वो इजीली एक्सेसिबल होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वहाँ यूज किया जाएगा. अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है तो उससे ज्यादा इमिशंस होता है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वहाँ प्रमोट किया जाएगा. स्पेशल सर्विस दिया जाएगा आपको टूरिस्ट को, जो इसको किस तरह का ट्रबल ना हो. वहाँ बोला जा रहा है कि 1000 किलोमीटर का कम से कम डेडिकेटेड साइकिल लेन्स बनाया जाएगा, जिससे आप साइकिल से जा सकते हैं. यहाँ देख सकते हैं साइकिल लेन, वहाँ का अगर बोला जाए तो वहाँ का जो मेयर भी होता है वो भी साइकिल से आपको ट्रेवल करता है. तो आप देख सकते हैं वो साइकिल का एक अलग से लेन बनाया जाएगा. 3000 जो बोला जाता है कि आपको साइकिल्स का रेंट पर साइकिल्स भी दिया जाएगा, आप साइकिल से मतलब ट्रेवल कर सकते हैं. तो इसलिए मतलब बोला जा रहा है कि ग्रीनेस्ट आपको पेरिस जो ओलंपिक गेम्स होगा. अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, तो बोला जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज 95% ऑफ इवेंट्स जो पेरिस गेम में आपको जो मतलब एग्जिस्ट है, जो पेरिस गेम में आपको बनाया जाएगा, जैसे जो बिल्डिंग्स हो गया या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपको प्लेयर को रहने के लिए या वहाँ पर जो खेला जो मतलब खेल कराने के लिए, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो आपको क्या होगा, या टेम्परेरी होगा, नहीं तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह यूज किया जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं मतलब कि जो गेम्स खत्म हो जाता है पेरिस का, तो उसके बाद
क्या होगा कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर जो बच गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया गया, उसे मतलब एक तरह से हाउसिंग तरफ बेच दिया जाएगा, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उसे, मतलब कि आपको किसी तरह का मतलब रिसाइकल भी कर सकते हैं। जो बिल्डिंग मटेरियल्स यूज किया गया, रिसाइकल मटेरियल्स यूज किया गया। तो बोला जाता है कि हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल इमिशन बोला जाता है जो इंडस्ट्री होता है, जो आप कंस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पर आपको ग्रीनेस्ट इसको बताया जा रहा है। अगर और आगे हम लोग यहाँ देखें तो ये यहाँ पर अगर बताया जा रहा है जो कंपटीशन होगा आपको, जो आपको यहाँ पर जो मतलब, ये तो हम लोग देख लिया जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बोला जाता है, ये भी बहुत ग्रीन हाइस्ट जो इमिशन होता है वो सबसे हाइस्ट इमिटर होता है, 37% ऑफ ग्लोबल इमिशन। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो चेक में रहे। अगर लिविंग अरेंजमेंट की बात करें तो वाइल द हाई टेम्परेचर इन पेरिस हैव फोर्स्ड, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा वहां पर क्या हो गया, आपको हाई हो गया, हाई टेम्परेचर है फोर्स्ड और generate or organizers to install 2500 temporary cooling units for the athletes instead of being AC free as originally planned। So जो कूलिंग यूनिट्स है वो बनाया गया, वो मतलब वहां पर एसी आपको मतलब क्या बोलते हैं कि एसी उतना मतलब नहीं यूज किया है, उस तरह से उसको कूलिंग बनाया गया है कि मतलब जिससे ज्यादा आपको गर्मी नहीं लगे। तो ये सब मतलब अरेंजमेंट किया वहां पर किया गया है। मैट्रेस बनाया गया रिसाइकल नेट का आपको, फिर आप बोल सकते हैं कार्डबोर्ड का बनाया गया है, जिसको मतलब क्या गेम्स खत्म कर रेंट भी किया जा सकता है। सो न्यू अपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं, ओलंपिक विलेज जो कम जो जिसको कन्वर्ट किया जाएगा होम में आपको। तो ये सब आपको वहां पर एक्टिविटी किया जा रहा है। अगर नेक्स्ट अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो बोला जा रहा है कि ये कंप्लीट इको फ्रेंडली आपको नहीं होगा। क्यों कंप्लीट इको फ्रेंडली नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो बोला जा रहा है कि ये 15,000 एथलीट्स को होल्ड कर रहा है, 45,000 वॉलंटियर्स को, 26,000 मीडिया को, 10 मिलियन टूरिस्ट, मतलब एक करोड़ से ऊपर टूरिस्ट आपको आने वाले। तो आपको अगर वहां से जो ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, लॉट ऑफ एयर ट्रैवल हो रहा है, वो आपको तो वहां तो आप ग्रीन हाउस इमिशन तो आप बचा नहीं सकते, तो इसलिए आप ग्रीन हाउस इमिशन पूरा तरह इको फ्रेंडली नहीं होगा। अगर एम्बिशन की बात करें तो वेरी लो इम्पैक्ट बोला जा रहा है कि अगर कार्बन पॉजिटिव, तो वहाँ रियलिस्टिक ये मतलब अप्रोच नहीं है कि आप मतलब कम कर सकते हैं। अगर हम और इसकी अगर मतलब क्रिटिसिज्म की यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो बताया गया यहाँ पर जो फंडिंग प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट का उसे बताया गया कि वहाँ पर अवॉइड करें आप कैप्चरिंग कार्बन इमिशन, जो फंड किया जा रहा है जो मतलब आपको ओलंपिक्स में किसी तरह का मतलब अगर आप ऐड हो गया किसी तरह का, तो वो आपको उस फंड का आप मतलब यूज करें जो कार्बन इमिशन को उसको कैप्चर करने के लिए। तो ऑफसेटिंग का बोला जा रहा है, ऑफसेटिंग करे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनसेट करने के लिए जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट आपको हो रहा है मतलब इस गेम से। तो कुछ कुछ एक्सपर्ट ने इसे ग्रीन वॉशिंग कहा। ग्रीन वॉशिंग और व्हाइट वॉशिंग आप लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन आपको बीपीएस जो यूपीएससी का पीटी में पूछा गया। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि मतलब सिंपली आप एक तरह से लिप सर्विस करें कि हम ये कर देंगे, हम कार्बन ऑफसेटिंग कर देंगे, कार्बन स्टोरेज कर देंगे, वो पेपर पढ़िए, बट वो क्या हो रहा है कि रियलिटी में वो आपको नहीं किया जा रहा, तो इसलिए ग्रीन वॉशिंग इसे बोला गया है। तो ये इससे आपको गिल्ट फ्री फीलिंग हो जाएगी हमने कुछ किया है मतलब नेचर के, लेकिन रियली में वो वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि उससे अच्छा है कि आप मॉनिटर करें, मतलब कुछ वहाँ पर चेंजेस लाए जिससे कि वो ग्रीन इमिशन आपको कम हो। तो रियली नीड आ रियल रिडक्शन रेदर देन ऑफसेटिंग, तो रियल रिडक्शन करना ज्यादा बेहतर है ऑफसेटिंग के मतलब बदले। और यहाँ पर अगर फ्रेंडली की बात करें तो बोला जाता है हाउएवर पेरिस इतना इज 2024 विल स्टिल गो डाउन एट द मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली। फिर भी मतलब कि जिस हिसाब से बोला जा रहा है कि हाफ इमिशंस होगा आपको, तो उस हिसाब से बोला जा रहा है कि एक ब्लूप्रिंट आपको मतलब बना देगा, एक मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर आगे कुछ गेम ऐसा हो रहा है, इफ इन फ्यूचर एनी गेम इज हैपनिंग, तो क्या होगा यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा कि इस तरह से हम भी कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि कहीं भी अगर आप गेम करवा रहे हैं तो बहुत सारे दर्शक वहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे आपको बिल्डिंग क्रिएट करना पड़ा, आपको एनर्जी सेक्टर के लिए वहाँ पर बहुत सारा फ्यूल का खर्च हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कम से कम इतना भी करेंगे तो कार्बन जो ऑफसेटिंग है, कार्बन का जो रिडक्शन है वो आपको कम होगा। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यूज्ड मटेरियल का यूज कर सकते हैं, साइकिल लेंस का यूज कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको वहाँ पर होगा जो पेरिस को। और मतलब जो बोल सकते हैं वर्ल्ड जो क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है वहां पे कुछ आपको फर्क दिखेगा। तो ये आपका इसके बारे में दिया गया था। तो इसे आप क्या कर सकते, कम से कम आंसर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, मतलब ये आंसर्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि गेम का भी क्या रोल हो सकता है आपको मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने में। तो क्लाइमेट चेंज का आज हम लोग मतलब बहुत सारा न्यूज और बहुत सारा जो मतलब आपको मीटिंग्स हो रहा है, चाहे वो कॉप का मीटिंग्स हो या यूएनएफसीसी का मीटिंग्स हो, तो वहाँ कम से कम क्लाइमेट चेंज का आप ये पॉइंट अगर लिखेंगे तो आपको वहाँ पर जो बोलते हैं यू विल गेट एज इन योर आंसर्स। So now coming to the next topic here. That's why I have taken this news item. This is very interesting news. So if you come to the next news here, so let us come to the next news here.
तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज आइटम्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आपको एक वायरस दिया गया हो, ये वायरस की अगर बात करें हम लोग, तो अगर ये वायरस की एक बात करें तो एक वायरस के बारे में बताया गया, तो ये पहले हम लोग वायरस के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। तो अगर ये वायरस की बात करें तो ये बताया गया कि लिस्टीरियोसिस, ये लिस्टोरियोसिस क्या है, एक वायरस है। लिस्टोरियोसिस जो क्या है एक आपको, ये लिस्टोरियोसिस क्या है आपको यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, वायरस है। ये कहाँ पर, यूएस और कनाडा में भी मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, फैल गया, फैल रहा। तो अगर लिस्टेरियोसिस की बात करें तो ये कौन सा वायरस है, ये आपको जो होता है ये लिस्टेरियोसिस, ये इन्फेक्शन है। ये जो फूड कंज्यूम करते हैं जो कंटामिनेटेड हो जाता है, वो ये लिस्टोरियोसिस बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल वायरस है। बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरियम लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स। ये जो लिस्टोरियोसिस आपको जो बीमारी हो रहा है, मतलब कि जो फैल रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये बैक्टीरियम लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स के कारण हो रहा है। और इसका मतलब क्या आपको मतलब क्यों हो जा रहा है, ये क्या है, तो लिस्टेरिया क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि आपको सॉइल में, वेजिटेशन में, वाटर, सीवेज, एनिमल्स और ह्यूमन फेसेस में ये मतलब आपको पाया जाता है। तो ये आपको सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड जैसे मिल्क हो गया, रॉ स्प्राउट्स हो गया, सॉफ्ट चीज हो गया, डेली मीट हो गया, इन दिस काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स इट इज मेनली फाउंड। सो जो बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, इंजेस्ट कर देते हैं कॉमन जो कंटामिनेटेड फूड हो गया, लेकिन सीख नहीं करते। लेकिन जो वनरेबल ग्रुप होता है, जैसे कि आपको जो इम्यून सिस्टम जिसका बहुत ज्यादा वीक होता है, जो एल्डर पॉपुलेशन होते हैं 65 एज के ऊपर अबव होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, इनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। और इन्फेक्शन फैलता है तो वो मतलब कि आपको इसमें बोल सकते हैं कि मतलब फर्टिलिटी रेट भी आपको ज्यादा बढ़ सकता है। सो बोला जा रहा है कि इसका जो सिम्टम होता है, ये आपको वॉमिटिंग होगा, नौसिया भी हो सकता है, क्रैम्प्स भी आ सकता है, सीवियर हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और फीवर, ये आपको क्या है, सिम्टम्स है। अगर लिस्टोरी का ट्रीटमेंट की बात करें तो इसे एंटीबायोटिक्स की तरह नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं। इसका कोई स्पेशली आपको मतलब वैक्सीन या किसी तरह का स्पेशली बोल सकते हैं कोई ड्रग्स आपको इन्वेंट अभी नहीं हुआ। ये सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि इन्वेसिव होता है, ये अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेकिंग आपको यहाँ पर सिम्टम्स, और ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर यहाँ पर देखें तो जो मतलब जो क्या बोलते हैं, वेस्ट में आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल को वहाँ मतलब रॉ अंडर कुक्ड वेजिटेशन या बोल सकते हैं मीट को कंज्यूम किया, जो डेली डेली जो मीट बोला जाता है, मतलब डेली जो लंच मीट होता है उसे कंज्यूम किया जाता है। तो वो मांस और कच्चा मांस का भी ज्यादा मतलब कंजम्पशन होता है, या कम पका हुआ मांस का कंजम्पशन होता है, किसी तरह का फ्लेश का कंजम्पशन होता है, तो वो आपको ज्यादा वहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ सीडीसी की बात करें तो बोला उसने उन्होंने मतलब जो मेजर निकाला, जो मतलब बोला आप लोग सावधान रहे, वो मतलब बोला जा रहा है कि जो अनहीटेड डेली मीट्स है उसको मतलब आप हीट करके खाएं, चीज सलाद को थोड़ा अवॉइड करें। और जो बोला जा रहा है कि जो फूड जो इजिली कंटामिनेट उसके थोड़ा सा अवॉइड करो, जो रेफ्रिजरेशन जो करते हैं आप लोग मतलब बहुत सारे फूड्स का, तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है। इसलिए बोला जा रहा है कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी फूड को अगर खाते हैं, मेनली डेली मीट्स हो गया या कोई भी डेयरी आइटम्स हो गया, तो उसे आप हीट करके खाएं। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया का वो ग्रोथ रुक जाएगा, वो मर जाएगा आपको। ये बोला जा रहा है यहाँ पर आपको। तो आप देखते होंगे कि जो इंडिया में भी आपको जो ये आपको मतलब जो वायरस आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं वो H1N1 जो इन्फेक्शन जो वायरस फैल जाता है, वो स्वाइन फ्लू टाइप से, जो उसमें बोला जाता है कि जो मीट का कंजप्शन होता है उसे बोला जाता है हीट करके, बहुत मतलब आपको बॉयल करके। तो इस तरह के बहुत सारे वायरस आपको मतलब हीट पर ही, या बैक्टीरिया आपको हीट पर ही क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो अगर इसके इसका हम और अगर मतलब जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो वहां पर आप देख के और इसे इजी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका, तो लिस्टोरियोसिस क्या होता है, इन्फेक्शन ये ईटिंग फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरियम लिस्टोरिया मोनोसाइटोजिन्स के द्वारा होता है। ये प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा इफेक्ट करता है, ये वीक इम्यून सिस्टम को, ओल्डर एडल्ट्स को बोल सकते हैं। तो ये आपको न्यूबॉर्न्स बेबी को भी होता है, चेस्ट एब्डोमेन बोन्स में आपको दर्द होने लगेगा। जो ये जो फूड आइटम से जो होता है, वो फूड आइटम्स की अगर बात करें तो रॉ मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, मीट हॉट डॉग हो गया, ये आपको इससे भी होता है, रॉ स्प्राउट्स हो गया। तो इस सब के कारण आपको ये फैल रहा है। अगर ये देखें तो ये फिगर है आपको लिस्टेरिया लिस्टोरेज, ये बैक्टीरियल का है, आपको बैक्टीरिया है ये। तो ये देख सकते हैं सिम्टम लिस्टोरेज की बात करें तो आपको फीवर होगा, फिर आपको क्या होगा, यहाँ पर चिलिंग भी होगा, फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे हेडेक भी होगा, फिर आप देख सकते हैं स्टोमक के पेन होगा, डायरिया होगा, फिर वॉमिटिंग होगा, मसल एक होगा। तो ये आपका इससे रिलेटेड डिस्टोरियस से, तो मैंने पिक्टोरियल दे दिया कि अगर आपको वो नहीं पढ़ना तो आप इतना देख के भी इसे जान सकते हैं। मेनली इसमें याद रखना है कि ये बैक्टीरिया है, लिस्टोरिया मोनोसाइटोजेंस, आपको फूड आइटम्स में
मतलब जो रॉ फूड आइटम्स उसमें ज़्यादा ये पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा है ऊपर, ओलंपिक्स हमने देख लिया, ये वायरस जो बैक्टीरिया उसके बारे में देख लिया। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो नया अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें माइनिंग ऑन पावर ऑफ स्टेट क्या होता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ये भी आपको मतलब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपको यूपीएससी के लिए। तो अगर माइनिंग ऑन पावर की यहाँ पर हम बात करें तो लेट अस जूम हेयर। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस माइनिंग एंड पावर ऑफ स्टेट्स, तो अगर माइनिंग और पावर की हम बात करें तो बोला गया कि इंडिया का जो मतलब जो स्टेट्स होता है, जो मतलब जो जितने भी राज्य होते हैं आपको, तो इंडिया का स्टेट जो होता है वो क्या करता है, स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटीज को जो टैक्स करने का पावर होता है वो स्टेट के पास, ये स्टेट लिस्ट में होता है। इसे आप ध्यान रखना, ये किस में होता है, स्टेट लिस्ट में होता है। ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। एंड रॉयल्टी जो कलेक्ट करता है वो भी आपको, जो माइनिंग लीज होल्डर्स होता है वो भी आपको क्या होता है कि स्टेट के अंदर ही होता है वो इम्पोज टैक्स से। तो ये आपको 9th कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच था उसने रूलिंग आपको दिया। तो अगर यहाँ रूलिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ बताया गया जो रॉयल्टीज किसे बोलते हैं, रॉयल्टीज क्या होता है, जैसे भी अगर कोई भी आप मतलब अगर बात करें जैसे कि आप कोई किसी तरह का गाना बनाए, जैसे आप कोई तरह का मूवी बनाए, तो आप कोई अगर मूवी अगर बना रहा है लेकिन वो चाह रहा है कि मतलब कि हम मतलब इस गाना का यहाँ पर इस प्रयोग करें, इस गाना का इस मूवी में हम यूज करें, तो क्या करेगा, जिसने वो गाना गाया उससे परमिशन लेके, तो उससे परमिशन लेके वो गाना का क्या करेगा, वो आपको मूवी में डालेगा। तो वो गाना अगर आप यूज कर रहे हैं अपने मूवी में, देन यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ रॉयल्टी इन फॉर्म ऑफ मनी। तो आपको पैसा मतलब दे के या आपको कुछ मॉनिटरी दे के उसे मतलब यूज करना पड़ेगा। तो वो एक रॉयल्टी होता है। इसलिए रॉयल्टी की वजह से आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का या किसी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप लैंड यूज कर रहे हैं माइनिंग के लिए, और माइनिंग के लिए आप लैंड यूज कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि आपको स्टेट टैक्स देना पड़ता है, स्टेट को एक टैक्स देना पड़ा वो जो आप माइनिंग कर रहे हैं उसका। एक होता है रॉयल्टी भी आपको पे करना पड़ेगा। रॉयल्टी आप ऐसा नहीं सिर्फ स्टेट को ही पड़ सके, अगर मैं जो लैंड है वो माइनिंग का लैंड अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का या किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का या बिजनेसमैन का, तो आप उसे क्या रॉयल्टी पे करते हैं वहाँ माइनिंग करने के मतलब बदले। तो ये इसलिए बोला गया कि रॉयल्टी भी क्या होता है, वो आपको स्टेट का जो मतलब अपना रूल होता है। तो ये इसने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपको जजमेंट दिया। यहाँ देख सकते हैं जो माइंस एंड मिनरल्स आपको डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट होता है 1957 का, ये रिक्वायर्स दोज हु ऑब्टेन लीज टू कंडक्ट माइनिंग एक्टिविटी टू पे रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट टू एनी मिनरल रिमूव टू द इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन हु लीज लैंड टू देम। तो जिसका लैंड है जिसने लीज किया उसे आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। ये जजमेंट था। ये मतलब इंडिया सीमेंट तमिलनाडु का भी एक जजमेंट था, उसमें भी मतलब टैक्स को बताया गया है कि मतलब किसके अंदर में, यहाँ देख सकते हैं। तो बताया गया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये भी कहा है कि आपको मतलब जो टैक्स आप पे करते हैं, जो टैक्स होता है, एक होता है कि आप जैसे स्टेट टैक्स दिए माइनिंग के लिए, फिर क्या होता है सेस लगाया जाता है कि इन्वायरमेंटल सेस है या किसी अदर टाइप ऑफ सेस है, जो रियल्टी पर भी सेस है। तो उसने बोला कि वो स्टेट का मतलब रूल नहीं कि आप सेस भी लगा सकते हो, वो सेस आपको एक तरह से टैक्स नहीं, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। रॉयल्टी क्या है कि आप पे करते हैं इंडिविजुअल को, जो इंडिविजुअल का जो अपना मतलब एक पेइंग जो मतलब जो क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से उसे पे करते हैं, वो एक टैक्स नहीं है। तो ये रॉयल्टी को एक टैक्स से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखो यहाँ बोला गया रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स बिकॉज देर इज अ कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टीज एंड टैक्सेस। सो रॉयल्टी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स बिटवीन द माइनिंग लीज होल्डर एंड द लेसर। लेसर क्या होता है, पर्सन हु लीज द प्रॉपर्टी, सो हु कैन बी अ प्राइवेट पार्टी ऑल्सो। टैक्स क्या होता है, टैक्स का मतलब ही होता है पब्लिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज किया जाता है, क्रिएटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू लेसर इन एक्सचेंज के लिए, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो मिनरल होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका रॉयल्टी और टैक्स में अंतर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है एक्सक्लूसिव पावर दिया गया कि आपको टैक्स और मिनरल्स का जो राइट है वो स्टेट को दिया गया, आप टैक्स कर सकते हैं। तो अगर हम लोग और इसकी अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो लिमिटेशन होता है इम्पोज पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वो टैक्स आपको इम्पोज नहीं करता, लेकिन पार्लियामेंट रेगुलेशंस बना सकता है, माइन से रिलेटेड जो रेगुलेशन होता है उसको ये बना सकता है। तो ये आपको एमडीआर के अंदर है। तो ये आप याद रख सकते हैं, एमडीआर पूछा भी जा सकता है माइनिंग के, मतलब माइनिंग क्या होता है, एमडीआर क्या होता है, उसके अंदर कौन सा रूल है, स्टेट टैक्स के अंदर मतलब जो माइनिंग का जो टैक्स होता है स्टेट के अंदर आता है या किसके अंदर आता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड्स एंड कवर्स एवरीथिंग अंडर द अबव लैंड, दिस टैक्सेस द कोर्ट सेड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एमडीआर एक्ट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं तो ये इतना ही इसमें ध्यान रखना। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं तो नेक्स्ट टॉपिक एक है, ये भी आपको मतलब मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस में आप आंसर राइटिंग में से लिख सकते हैं। जो
आज हम लोग एआई पर जो इंडस्ट्रियल 4.0 पर जो बात करते हैं, जो मशीन लर्निंग एआई का यूज करते हैं, जो जनरेटिव जो मतलब मशीन लर्निंग का जो हम लोग यूज करते हैं, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा आपको चर्चा है। और आज हम जो यूज करते हैं, जो चैट जीपीटी हो गया या मतलब गूगल का जो फॉर्म जो ओपन एआई चैट जीपीटी हो गया, तो इस तरह का यूज करते हैं। इसे बताया गया यहाँ पर, अगर ये आर्टिकल को अगर ध्यान से देखें, मतलब अगर इसे आप पढ़े होंगे, तो इस आर्टिकल में हेयर इट इज सेड दैट, तो एआई का जो यूज हो रहा है वो प्रेजेंट में, तो बोला जा रहा है व्हाई एआई प्रेजेंट एंड फ्यूचर ब्रिंग सम सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो यहाँ पर अगर बात करें एआई की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चीज, तो अगर एआई की यहाँ पर हम बात करें, तो हम लोग यहाँ पर अगर तो यहाँ पर अगर एआई की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर अगर देखिए, तो बताया जा रहा है कि ये आपको ध्यान रखना है, ये डाटा अगर ये आप याद रखेंगे तो आप आंसर्स में मतलब आप आंसर्स आपका अच्छा हो सकता है। जैसे आपको इफ यू सी हियर द वन, अगर आपको जैसे पोस्ट आप एआई पर कर रहे हैं, जैसे एआई को किसी तरह का पोस्ट कर रहे हैं, ओपन एआई चैटबॉट जीपीटी, तो बोला जा रहा है कि जो एनर्जी आपको यूज किया जाएगा बिटवीन 10 एंड 33 टाइम्स, वो एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर सिंपल आप गूगल सर्च पे जैसे कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, किसी भी डाटा का सर्च कर रहे हैं या किसी तरह का ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि वो जो ब्राउजिंग कर रहे हैं, अगर एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो 10 गुना या से 33 गुना ज़्यादा होगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आपको निकल कर आ रहा है एआई के मतलब लिए। मतलब एआई ऐसा नहीं किसी आपको मतलब इफिशियंसी बढ़ा देता है, आपका काम को हल्का कर देता है, या किसी तरह का मतलब वर्कलोड को कम कर देता है। आपको बहुत तरह का एआई का यूज करके हम क्लाइमेट चेंज को भी मतलब जो मॉनिटर कर पाते हैं, बहुत सारा मतलब जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक क्या है कि मतलब क्रिटिसिज्म की तरह, या मतलब आप एआई का जो इम्पैक्ट है, जो मतलब बैड इम्पैक्ट बोल सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट, वो हम लिख सकते हैं कि इसका जो यूज करते हैं हम लोग एआई का या मशीन लर्निंग का, वो 33 टाइम्स मोर एनर्जी कंज्यूम करता है आपको सिंपल गूगल सर्च से रखना। तो इतना ही मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स था आपको, मतलब जो इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड, जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आज ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए टाइम भी आपको ज़्यादा लगा। सो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन का जो न्यूज आइटम्स होगा वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।